ایران نے آبنائے ہرمز اور اپنی فضائی حدود میں امریکہ کے 2 عدد F-35 اور ایک A-10 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ مار گرائے جانے والے طیاروں میں F-15E اور A-10 طیارہ شامل۔ امریکہ کے F-15 طیارے میں پائلٹ اور عملے کا رکن سوار تھا، جن میں سے ایک پائلٹ کو بازیاب کرا لیا گیا جبکہ دوسرے کی تلاش جاری۔ ریسکیو آپریشن کے لیے جانے والے 2 امریکی فوجی ہیلی کاپٹرز اور ایک ڈرون کو ایران نے مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ہیلی کاپٹرز میں موجود تمام اہلکار محفوظ ہیں اور ریسکیو آپریشن ان حملوں کے باوجود بھی جاری ہے۔ ادھر ایرانی فوج نے ایک امریکی A-10 طیارے کو خلیج فارس کے جنوبی حصے میں مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ ایران میں تباہ ہونے والے امریکی جنگی طیارے کے پائلٹ کی تلاش تاحال جاری، جس کے لیے امریکی جہاز اور ڈرونز ریسکیو آپریشن میں مصروف، جبکہ ایران نے امریکی پائلٹ کو پکڑ کر لانے والے یا اس کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کو انعام کا اعلان کر دیا۔ ایرانی حکومت کی طرف سے شہریوں سے کہا ہے کہ اگر آپ دشمن کے پائلٹ یا پائلٹس کو زندہ پکڑ کر قانون نافذ کرنے والے یا فوجی اداروں کے حوالے کریں تو آپ کو قیمتی انعام دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی صوبے کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی امریکی پائلٹ کو پکڑ کر حوالے کرے گا اسے 10 ارب تومان تقریباً $76,000 انعام دیا جائے گا۔ ایرانی سیکیورٹی اداروں اور پاسداران انقلاب کی طرف سے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسرائیل نے ایران میں امریکی پائلٹ کی تلاش تک حملے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی جبکہ 26,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 600 سے زائد اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نے پٹرول کی قیمت 80 روپے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ کابینہ ارکان کے 6 ماہ کی تنخواہیں قومی خزانے میں جمع کرائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے خطے میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عام آدمی کے لیے نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ قومی وسائل محدود ہیں۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ ہو چکا ہے۔ مہنگائی نے دنیا کی طاقتور معیشتوں کی کمر توڑ دی ہے۔ جانتا ہوں کہ پاکستان میں عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایوان صدر میں 4 وزرائے اعلیٰ، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی مشاورت کے لیے موجود تھے۔ 3 ہفتوں میں قومی وسائل سے 129 ارب کی سبسڈی دی گئی۔ اس طوفان کو سبسڈی کے ذریعے عوام تک پہنچنے نہیں دیا۔ دعا ہے جلد سے جلد جنگ ختم اور امن قائم ہو جائے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور اسحاق ڈار جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے بتایا کہ چھوٹے ٹرکوں کو 70,000، بڑے ٹرکوں کو 80,000 اور پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ مال بردار گاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ امداد فراہم کی جائے گی۔ ریلوے میں اکانومی کلاس کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب کے عوام کے لیے ریلیف کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان۔ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں مفت سفر ہوگا۔ اورنج لائن، ٹرین، میٹرو بس سروس، اسپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں سفر بالکل فری ہوگا۔ شہری ذاتی سواری کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی عوام سے اپیل۔ زراعت، خوراک اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم دینے کا فیصلہ۔ کاشتکاروں کو فی ایکڑ فی لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہر رجسٹرڈ بائک والے شہری کو 20 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ 1 ماہ تک پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی اور نرخ برقرار رکھنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو مشکلات سے بچانے کی بھرپور اور مخلصانہ کوشش کی۔ بدترین معاشی صورتحال میں عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پبلک ٹرانسپورٹ کی طرز پر گڈز ٹرانسپورٹ کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ ایندھن کی قیمتوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ماہانہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رجسٹرڈ گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے 70,000 روپے، بڑی گاڑیوں کے لیے 80,000 روپے اور پبلک سروس بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ مریم نواز نے کہا یہ سبسڈی آپ کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ میں پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز خصوصاً پنجاب سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ عوام کا ساتھ دیں اور اس اضافے کا بوجھ مسافروں اور صارفین پر منتقل نہ کریں۔ حکومت صورتحال کی قریب سے نگرانی اور مؤثر ریگولیشن کرے گی تاکہ یہ ریلیف حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچے۔ یہ وقت ہے ذمہ داری، ہمدردی اور یکجہتی کا۔
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल और आलमी तेल कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, जबकि विफाक ने गुज़श्ता 3 हफ्तों से कीमतें नहीं बढ़ाई। इस्लामाबाद में वज़राए आला के इजलासों के बाद टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला किया गया, जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए दिए जाएंगे और मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुकम्मल मुफ्त कर दी गई, जिसके लिए एक्साइज की ऐप भी तैयार है और 15 दिन में ट्रांसफर लाजमी होगा। 25 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, जबकि सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों को ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोअर क्लास रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा और सिंध में रजिस्टर्ड 27,237 बसों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रकों को माहाना माली मुआवनत दी जाएगी। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि सब्सिडी का बोझ सूबे खुद उठाएंगे और हुकूमत किराए बढ़ाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि कल से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 30 रोज के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। ये इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए उठाया गया है, जबकि सहूलत के अखराजात वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। इस मनसूबे के लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि शहरियों को महंगाई के दौरान सफरी सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर दाखिला का कहना था ये इक़दाम आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए किया गया है और इससे रोजमर्रा सफर करने वाले अफराद को नुमायां फायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज को किरायों में इजाफे से रोक दिया। रेलवे हुकाम का कहना है कि तमाम मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों में इकानमी और एसी क्लासेस, जबकि फ्री ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। ये अवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुँच में रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोल बहरान हमारा पैदा करदा नहीं, हुकूमत रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दे रही है। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में पेट्रोल और डीजल दस्तियाब ही नहीं। हमने एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना। अवाम को इस चीज का अदराक होना चाहिए। हुकूमत जंग बंद कराने के लिए भी कोशिशें कर रही है। एहतजाज करके हम मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सूरत हाल का फायदा उठाकर सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय एहतजाज को हवा दे रहे हैं। आलमी सतह पर कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं। चंद अनासर मौजूदा हालात में अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरान हमारा पैदा करदा नहीं। हम इस बहरान से बावकार कौम की तरह निकलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों की APC बुलाने का फैसला कर लिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के फैसले का ऐलान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। महंगाई में तो 100% इजाफा होगा। ये अभी मुसलसल एक माह के अंदर दूसरी दफा पेट्रोल बढ़ गया है। गोश्त ना 3000 से 3500 गोश्त हो गया। लोग बोल रहे हैं, रो रहे हैं। सब्जी कुछ रेट पे दे नहीं रहे और गोश्त सब्जी हर चीज महंगी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने जीते जी मार दिया। महंगाई का तूफान आएगा। पहले ही गरीब आदमी पिस रहा था। हुकूमत ने कीमतों में इजाफा करके जिंदगी मजीद अजीरन बना दी। शहरियों की दुहाइयां कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर फनकार भी फट पड़े, बोले पेट्रोल महंगा करके हुकूमत ने आवाम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां किराए 1 से 2500 रुपए तक बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को 3 की बजाय 4000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। कराची का किराया 8000 से 600 बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी पीछे न रहे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने भी 60% किराए बढ़ा दिए। इंतजामिया लूट मार रोकने में नाकाम। सदर पाकिस्तान गुड्स अलायंस मलिक शहजाद की कीमतों में इजाफे की मुसम्मत बोले महंगाई का तूफान आएगा, नजरसानी न की गई तो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहना था कि हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। मतवस्त तबका खत्ते गुर्बत से नीचे चला जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? साबिक विफाकी वजीर का कहना था ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म न हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे।
IMF ने पाकिस्तान की पेट्रोलियम लेवी में नरमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ताहम वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत दी कि वो दोबारा IMF से राब्ता करे और आवाम पर बोझ कम करने के लिए नरमी की तजवीज़ दोबारा पेश करे। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी तेल की कीमतों में इजाफे का मुकम्मल असर सारिफिन पर मुंतकिल करना आवाम के लिए कुछ ज़्यादा होगा और यह महंगाई में नुमाया इजाफा कर सकता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक कौमी सतह का मसला है जिसके असरात हर शोबे पर पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि टोल टैक्स और दीगर सूबाई टैक्सेस में मुमकिन रिलीफ के हवाले से मुतालिका हुकाम से मुशावरत की जाएगी। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना आवाम पर जुल्म है। गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासिर होगा। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद बोले। पेट्रोल को 458 रुपए तक पहुंचा दिया गया। पहले 55 रुपए, फिर 137 रुपए इजाफे से खरीब पिस कर रह जाएगा। बाइकर्स, डिलीवरी बाइकर्स, तलबा और मजदूर समेत सब मुतासिर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिल की गहराइयों से खिराजे तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद एक माह तक इसका बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मुअस्सर हिकमत अमली और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। आज हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए कि इसकी क़यादत शहबाज शरीफ जैसे जिम्मेदार और संजीदा रहनुमा के हाथ में है, जो मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात कर रहा है। आज भी जब कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था तो उसे आम आवाम पर मुकम्मल बोझ डालने की बजाय टारगेटेड सब्सिडी के जरिए मतवाज़न किया गया। तमाम मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के मुस्तहिक नहीं। जिसके पास हैवी बाइक है वो पेट्रोल बर्दाश्त कर सकता है। वज़ीर ख़जाना के मशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि सूबाई हुकूमतों के पास डाटा है कि कितनी मोटरसाइकिलें किस सूबे में हैं। सूबाई हुकूमतों ने खुद तजवीज़ दी है कि मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी दे सकते हैं। ऐप के जरिए मालूम किया जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के लिए रजिस्टर है या नहीं। BISP का डाटा भी मौजूद है कि कौन कितना मुस्तहिक है। इनका मजीद कहना था कि जंग खत्म हो और तेल की कीमतें कम हुई तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी अरब हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौका पर खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान चीन 5 नुकाती इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों वज़ीराए ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए बाहमी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।